हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में। मैं हूं आपका मेंटोर एंड हु हैव ब्रॉट अ बेस्ट सीरीज फॉर एवरीवन, फॉर एवरी एस्पिरेंट, whether you people are making preparation for SSC banking, or you people are studying in CBSE board, UP board, or any kinds of board. So my video is going to be perfect for everyone, right? So be ready with me and keep your patience. I'm going to teach. Today's topic is that negative sentence under present indefinite tense. Okay, so आइए present indefinite tense. As you know, I have completed my positive sentence and I took long time to complete. At least 7 days, 7 part में मेरी पॉजिटिव की वीडियो बनी हुई है. यू मे गो एंड वॉच, है ना, ईच एंड एवरीथिंग. बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से मैंने एक एक चीज उसमें मेंशन किया है. Whatever we people are implementing the things in our daily life, everything has been mentioned in that videos. तो आप वहां पे जाइए, वहां पे देखिए, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें पाएंगे कि चीजों को किस प्रकार से हम यूटिलाइज करते हैं, राइट? सो माय टुडेज टॉपिक इज negative sentence under present indefinite tense, right? Negative sentence. So before starting this, you know that in this we will use two words like not and never. ठीक है, not and never. Is that clear? So first of all, before starting, I want to know about not, about never. According to the parts of speech, what is this? ये parts of speech के according क्या है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि what is not and what is never according parts of speech. Because you know that under parts of speech there are the 8 of parts of speech, right? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, interjection, conjunction, preposition. These all are the parts of speech. तो इन सभी में से ये जो not है, never है, ये क्या है? Means what is not, what is never according to parts of speech? Is this noun? Now tell me that, is this noun? Is this pronoun? क्या ये pronoun है? क्या ये noun है? क्या ये एडवर्ब है? क्या ये एडजेक्टिव है, वर्ब है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? You also may think about it and may comment in the comment box. I will see and I'll reply that you people are whatever you are answering is right or wrong. मैं बताऊंगा आपको कि जो भी आपने आंसर दिया है वो राइट है, रॉन्ग है, बिकॉज आई एम गिविंग सम ऑप्शंस टू यू. आई एम गिविंग ओनली 4 ऑप्शन, राइट? In this 4 option you have to choose one best. First is that noun. Second is that verb, like adjective, and one more I'm giving adverb. Chalo, I'm giving 30 seconds to think about it, that what is these 2 words, and after that tell me that means कि ये इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है. बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. Think about it and answer me. The third, the fourth, one option you have to choose. Not because suppose you can't choose these 4 options. One option you have to choose. In the examination, you are not right to choose 1, 2, 3, 4. आपको एक चूज करने का मीन्स थ्री अकॉर्डिंग टू यू दिस इज adjective, right? So first of all, will you tell me that what is adjective? What is adjective? Think. I'm writing go, yeah, teach, or teach. Okay, this is an verb because this is an action word, right? So this is a verb. Okay, अब यहाँ पे देखो आप कि ये हमारा एक वर्ब है, और अगर मैं यहाँ पे चीज और लिखता हूं ही, ठीक, ही. अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है?
This is an action word. That's what we can call it. It is a verb. This is an word which is used to replace the noun in the sentences, right? तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। अब ये बताओ आप कि जो ये वर्ड लिखा गया है, now adjective is a word which is used to describe about noun as well pronoun। ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। समझ में आया? नाउन एंड प्रोनाउन विल बी डिस्क्राइब्ड बाय एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के माध्यम से, एडजेक्टिव के द्वारा ये डिस्क्राइब्ड होगा। मींस देयर इज नो पावर, है ना, टू डिस्क्राइब अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, है ना, विद द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। के पास कोई पावर नहीं है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर सकता है। केवल इसी के पास एक पावर है, अथॉरिटी है कि ओनली एडजेक्टिव, है ना, कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? बट इज दिस नाउन? नो, इट इज प्रोनाउन। इट इज इट इज वर्ब, राइट, है ना, इट इज वर्ब। अब वर्ब को डिस्क्राइब कौन करेगा? सो दिस इज एन लास्ट ऑप्शन। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा नॉट है, जो नेवर है, ये पहली बात तो नाउन होगा नहीं, नाउन की कैटेगरी से हट गया। दूसरा बात यहां पर आप ये समझिए कि एडजेक्टिव उस वर्ड को कहते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। समझ में आया? अब आपके पास बचा दो चीजें, एक है वर्ब और दूसरा क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब उसे कहते हैं विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट वर्ब, जो कि एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो हमारा नॉट है, ये कोई एक्शन वर्ड है? नो। ये कोई पोजीशन वर्ड है? नो। मीन्स ये हमारा जो नॉट और नेबर है, ये ना तो एक्शन है, ना तो पोजीशन है, ना किसी टाइप का इसके अंदर स्टेट दिख रहा है। दैट मीन्स ये हमारा वर्ब भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब कैसे सही होगा? जस्ट watch here how this never and not will be considered as adverb। कैसे हम इसको adverb कहेंगे? तो adverb क्या करता है? adverb बताता है कि जो वर्ब हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कब हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? There are the various way, है ना, by which we can describe about the verb, right? तो अब यहाँ पर देखिए कि जो ये टीच है, अभी टीच क्या हो रही है? टीच हो रही है। टीच वाला जो एक्शन है वो अभी हो रहा है। और सोचो, जैसे ही मैं इसमें नॉट लगाऊंगा, ये होना बंद हो जाएगा। समझ में आया? मीन्स आई मे से दैट आई एम टीचिंग, तो मैं टीच का काम कर रहा हूं। और मैं अगर ये बोल दूं आई एम नॉट टीचिंग, तो अब जो मैं काम कर रहा था ना, वो अब नहीं कर रहा हूं। तो कौन सा वर्ड डिस्क्राइब्ड हो रहा है इस नॉट से? नॉट से कौन सा वर्ड डिस्क्राइब हो रहा है? टीचिंग वर्ड डिस्क्राइब हो रहा है। नॉट लगा रहा हूं तो टीचिंग वाला काम बंद हो गया, नॉट हटा दिया, टीचिंग वाला काम शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? टीचिंग इफेक्ट हो रही है इससे, कुछ और नहीं हो रहा है ना, टीचिंग इफेक्ट हो रहा है। आई मीन टू से दैट द वर्ब इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय नॉट। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस नॉट एंड नेवर बोथ वर्ड्स आर एडवर्ब। ये क्या है? दोनों वर्ड एडवर्ब है। गॉट इट? इट्स क्लियर है ना फॉर एवरीबॉडी? Okay, if you people are facing any kinds of the problem, you may ask the question, definitely I will answer. Okay, wait. तो हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं किसको? नॉट और नेवर को, द अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, जब हम नॉट को यूज करेंगे,
जब हम नॉट को यूज करेंगे तो विद दिस, है ना, विद दिस वी विल यूज डू एंड डज, राइट? विद दिस वी विल यूज डू एंड डज. इफ वी विल यूज नेवर, सो नो नीड टू यूज डू एंड डज. तब हम वहां पर डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे. समझ में आ रहा आपको? हम डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? Yes. ओके. अब नाउ दिस डू एंड डज, डू will be used with plural number subject. And what are the plural? तो प्लूरल होता है हमारा क्या? I, we, you, they. ठीक है? अगर हमारा इसमें से कोई सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, that should be considered as a plural form. And does, with whom we will use does, does यूज किया जाएगा दोस्तों he के साथ, she के साथ, it के साथ, or if any name has been given, that we can use does. Is that clear? Okay, very good. समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए. If I'm here, so don't fear. Okay, I'll make clear all the concept. Is my promise. May take screenshot. Okay, okay. चलो आ जाओ. अब हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, राइट? आओ देखो, एज आई टॉट, अंडर द पॉजिटिव सेंटेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, राइट? हमें सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करना है. ठीक, इसके बाद हमें क्या यूज करना है? इसमें हमें यूज करना है डू एंड डज लगाना है, राइट? इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये हमारा बना स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर पे हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज. सो वेट, आई एम राइटिंग सम एक्सरसाइजेस. तो आइए मैं इस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके दिखाता हूं किस प्रकार से हम निगेटिव के अंडर इसे ट्रांसलेट करेंगे. देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता. जस्ट ट्राई टू सॉल्व, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल ट्राई टू सॉल्व. अपने से बोलो, बोलो क्या होगा इसका, बताओ. इसको बताइए क्या होगा. मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता. बताइए बताइए क्या होगा. मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता. I do not believe in this. Not in this, not in this, only this. Okay, I do not believe in I do this. not believe, I do not believe. Just try to correct your pronunciation also. I do not believe. Not believe नहीं, leave, believe. Believe. हाँ, la, okay, like not la. I do not. How you will correct your pronunciation? Listen here, L. Okay, it is L. देखो, जब हम L बोलते हैं ना, तो just look at me. Okay, जब हम L बोलते हैं तो L के टाइम पे हमारा जो टंग होता है वो ऊपर जाता है. फील करना है ना, और टंग इज गोइंग अपर साइड पार्ट ऑफ आवर माउथ, और उसके बाद हम नीचे कर देते उसको, और वही हमको नहीं करना है. ठीक है, हमारा जो टंग है वो ऐसे हुआ तो इतने पे रोक के रखना है. ठीक, ऊपर वाला जो दांत है ना वहां पे चिपका के रखिए ऐसे. नॉट एल, है ना? तो अगर आप उसे छोड़ दोगे तो यह एल निकलेगा. एल, तो एल नहीं बोलना, इट्स एल. एल, दैट believe, Believe. I believe, apple, apple, right? Right. Okay. So मैं इस बात पर believe नहीं करता. So first of all we have to search subject. मैं क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया. मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो मैं आपको एक
बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताओ, सेंटेंसेस को कैसे करना। इफ यू डू नॉट नो अबाउट एनी काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, अगर आपको नहीं पता है ना, तब भी आप इसको बहुत ही ब्यूटीफुली करोगे। कैसे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सर्च द सब्जेक्ट। फर्स्ट वन थिंग्स यू हैव टू डू, पहले सब्जेक्ट को सर्च करो, और सब्जेक्ट को सर्च करने के बाद बैक साइड से एक एक वर्ड की अंग्रेजी बनाते चले जाओ। सिंपल। ओके, डू नॉट फॉलो दिस स्ट्रक्चर, इसे मत फॉलो करो, मत याद करो इसे, है ना। ओनली ट्राई टू फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम बैक साइड। द वेरी सिंपल। देखो, मैंने यहां से सब्जेक्ट फाइंड कर लिया, राइट। आई क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो लास्ट में क्या है, नहीं करता। नहीं करता के लिए आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, डू या डज, डू या डज, तो डू लगाओगे। ठीक, क्या लगाओगे आप, डू लगाओगे। और नहीं के लिए क्या लगाओगे, नॉट। ठीक है, तो देखो आई डू नॉट, इसका मतलब हो गया मैं नहीं करता। समझ में आया, इसका मतलब क्या हो गया, मैं नहीं करता। अब क्या नहीं करता, तो मैं बिलीव नहीं करता। ठीक है, मैं क्या नहीं करता, बिलीव नहीं करता। कहां पे बिलीव नहीं करता, तो इस बात पर नहीं करता। आई डू नॉट बिलीव दिस, राइट, आई डू नॉट बिलीव दिस। ऑल्सो मेरे प्यारे साथियों, वी कैन कॉल इट है इन द शॉर्ट फॉर्म, आई डोंट बिलीव दिस। व्हाट, आई डोंट बिलीव दिस, नॉट डोंट। डोंट, आई डोंट बिलीव दिस, डोंट, है ना। तो आपको जैसे ट को ठ के टाइम से थोड़ा सा ट और ठ को मैच करके बोलना है। ठीक है, आई डोंट बिलीव दिस, है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप इसको बोलोगे, एक बार बोल के देखो कैसे बोलेंगे। जैसे आपको कहना हो कि मुझे इस बात पे भरोसा नहीं, आई डोंट बिलीव दिस। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, वह दूसरों की बातें नहीं मानता। चलो बताओ, वह दूसरों की बातें नहीं मानता, हाउ इट विल बी ट्रांसलेटेड। देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही, वह को हम ही करेंगे। अब पीछे से आ जाओ, पीछे से। तो ही, अब मानना की स्पेलिंग बताओ, मानना की स्पेलिंग। अब भाई मानोगे कैसे, जब सुनोगे तब तो मानोगे। लिसन। ठीक है, तो लिसन, लिसन मतलब मानना, राइट। तो ही, और ही के साथ क्या लगाओगे, डज। ही डज नॉट listen, he does not listen to others. It's very simple, he does not listen to others ना। नेक्स्ट आ जाओ, वे बिना वजह किसी पर भरोसा नहीं करता। वे बिना वजह किसी पर भरोसा नहीं करता। लिखा है तो नहीं करते। करते, चलिए ठीक। वो बिना वजह किसी पर भरोसा, वे बिना वजह किसी पर भरोसा नहीं करते। बताइए, आ जाओ, बताइए बताइए। ट्राई टू ट्रांसलेट, ट्राई टू ट्रांसलेट। They do not believe on others without any reason. Okay, also we can say they do not believe or they do not trust anyone without reason. Also we can call it, है ना, they don't trust, है ना, what, they don't trust anyone without reason. They do not trust anyone without reason, right? Is there any problem? I think there is no problem, right? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आइए अब थोड़ा सा हम नेवर की बात कर लेते हैं, नेवर की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, नेवर में अब जब आप नेवर लगाओगे, नेवर लगाओगे, है ना, तो आई टोल्ड यू दैट वी डू नॉट हैव टू यूज डू एंड डस, हमें ये नहीं यूज करना है। तो अब थोड़ा सोचो कि फिर हम कैसे इसको बनाएंगे, हाउ वी विल यूज। ओके, जस्ट
just think about it that I never go there. I never go there. Sorry, he never go there. Is there any problem in this sentence? Is there any problem in this sentence? Is this right or wrong? Is this right or wrong? Try to search, try to think it. Okay, is this right or wrong? Wrong. Why? Goes. Goes, that goes, very good. It will be goes, not go. There. Goes कैसे? हाँ? Sorry. Goes कैसे होगा? Goes कैसे होगा? Because my dear friends, I taught you that in the present indefinite tense is mandated to use s and es in the end of the verb. Okay? But if do and does is not going to be used, तो अगर यूज नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर एस और es लगाना मैंडेट हो जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? So what it would be the structure to frame the sentences on the basis of never. आइए बताते हैं आपको इसका स्ट्रक्चर. हम आपको लिख के बताते हैं. आ जाओ. सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे नेवर प्लस वर्ब, और वर्ब में हम लगाएंगे एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट्स. वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, राइट? नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देते हैं. यह बच्चा स्कूल कभी नहीं जाता है. यह बच्चा स्कूल कभी नहीं किधर हो गया, सॉरी, कभी नहीं जाता है. ओके, ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू ट्रांसलेट दिस वन. सब्जेक्ट क्या होगा इसका? यह बच्चा. ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे? दिस बॉय. ओके, दिस बॉय. अब पीछे से करो मेरे बच्चों, पीछे से करो ना, बड़े प्यार से पीछे से करो. कभी नहीं की इंग्लिश अंग्रेजी क्या होगी? नेवर. ऐसा सोचना नहीं, ये तो लगा दो ना भाई, लिखा हूं ऊपर नेवर. ओके, जाना का बता दो. गोज होता है क्या? गोज. अब कहा नहीं जाता है? टू स्कूल. गुड, टू स्कूल. इज दैट क्लियर? आइए दूसरा बताते हैं आपको. मैं रात में मूवी कभी नहीं देखता हूँ. मैं रात में मूवी कभी नहीं देखता हूँ. चलो बताओ. ट्रांसलेटेड. आई, इट इज अ सब्जेक्ट. प्यारे भाइयों, आप इधर से करना शुरू करो. मैं कभी नहीं का क्या करोगे आप? नेवर, है ना? और देखना के लिए क्या लगता है? वॉच लगता है. सॉरी, वॉच लगाते हैं. आई नेवर वॉच व्हाट? मूवी इन द नाइट. अच्छा चलो, मुझे एक बात बता दो. मैंने यहाँ पे वॉच लगाया, मैंने यहाँ पे सी क्यों नहीं लगाया? मैंने यहाँ पे लुक क्यों नहीं लगाया? मैं यहाँ पे वॉच क्यों लगाया? दिस इज द क्वेश्चन for everybody. You have to answer in the comment box. What is the differences between these three words? इन तीनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए. अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो मैं आपको समझाऊंगा कि इस दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है. लेकिन पहले आप ट्राई करो. ट्राई टू सर्च. ओके, होता है ना, पकाया खाने से बेहतर होता है जस्ट ट्राई टू कुक, है ना? कुक करने की कोशिश करो, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, व्हाट द इंग्रेडिएंट्स वी हैव टू इंक्लूड टू मेक अ करी. समझ में आया? सो आई होप
My dear fellow, you may understood properly है ना दिस नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना. नेगेटिव में कुछ ज़्यादा, पॉजिटिव में बहुत चीज़ें था, मैंने आपको बताया था. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यू हैव टू यूज डू नॉट, डज नॉट, है ना. दैट्स क्लियर. आफ्टर दैट आई विल टीच इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा. थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, है ना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, वहाँ पे समझने की जरूरत है. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट. सो फॉर टुडे, bye bye everybody. If my video is being interested, so please like and share and subscribe. Thank you and best of luck for everybody. Bye.